امید نہیں تھی پی پی کی طرف سے شکایت کا موقع ملے گا۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کا ہی وزیر اعظم تھا۔ ہم نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ سیاست میں مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جراثیم اگر داخل ہو جائیں تو یہ اچھی بات نہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا نون لیگ کے مشاورتی اجلاس میں اظہار خیال، کہا اب عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گنجائش نہیں۔ اب ہم نے کام نہ کیا تو آزاد کشمیر کے عوام ناراض ہوں گے۔ شہباز شریف پی ٹی آئی کا بگاڑ ٹھیک کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں جیسا پاکستان کا حال ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ پنجاب میں ترقی کی بنیاد شہباز شریف نے رکھی، مریم نواز آگے بڑھا رہی ہیں۔ شہباز شریف کو کہوں گا آزاد کشمیر کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں، جیسے پنجاب بدلا آزاد کشمیر بھی بدلنا چاہیے۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کے نئے قائد ایوان کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے شاہ غلام قادر کا نام سر فہرست، پارلیمانی پارٹی نے قائد ایوان کے لیے اختیار نواز شریف کو سونپ دیا۔ مریم نواز نے بھی پیپلز پارٹی پر تنقید کے تیر برسا دیے۔ آزاد کشمیر میں دھاندلی کے الزامات کا جواب۔ مری اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر دھاندلی کے جھوٹے الزام لگائے۔ الزامات لگاتے وقت یہ بھول گئے انتظامیہ اور حکومت ان کی اپنی تھی۔ ان کے صوبے میں گندگی کے انبار لگے ہیں۔ 17 سال میں ایک اچھی سڑک نہیں بنائی، ایک سڑک ایسی نہیں جس پر آرام سے گاڑی چلے۔ وہاں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لوگ پنجاب آتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا۔ شہباز شریف نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی پی کو جی بی میں حکومت بنانے کی دعوت دی۔ کشمیر الیکشن کا نتیجہ فارم 47+ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ نون لیگ کو تاریخی دھاندلی کے ذریعے ایک اور خیراتی مینڈیٹ ملا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا نون لیگ پر جوابی وار، ایکس پر پیغام میں کہا جعلی مینڈیٹ سے حکومت تو بنائی جا سکتی ہے، عوامی مقبولیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نون لیگ کو عوام کی حمایت کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت سے دشمنی نہیں چاہتی، نہ کبھی کی ہے، لیکن جمہوریت کے نام پر دھاندلی یا عوامی مینڈیٹ پر اثر انداز ہونے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انتخابی عمل پر سنجیدہ سوالات اٹھیں تو انہیں شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کا اپنے مالیاتی حصے سے وفاق کو رقم دینے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں وفاق نے بجٹ سے پہلے دیگر صوبوں کی طرح کے پی سے بھی اضافی رقم کا تقاضا کیا۔ اضافی رقم کی فراہمی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کیا تھا۔ ضم شدہ اضلاع کو 11ویں این ایف سی میں آئینی اور جائز حصہ دینا بھی ہماری شرط تھی۔ وفاقی وزارت خزانہ نے جولائی کی منتقلیوں میں کے پی کو واجب الادا 6 ارب 40 کروڑ روپے کٹوتی کی تجویز دی۔ کے پی حکومت نے مجوزہ کٹوتی کی منظوری دی، نہ اتفاق کیا۔ خیبر پختونخوا کے آئینی، مالیاتی اور این ایف سی کے حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوم آزادی کے موقع پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ملک کے دفاع میں سابق فوجیوں کی گراں قدر خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قومی استقامت کو مضبوط بنانے میں سابق فوجیوں کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا سابق فوجیوں کا تجربہ، رہنمائی اور مسلسل وابستگی ایک قیمتی دائرہ جاتی اثاثہ ہے۔ سیکیورٹی کے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کے تجربات سے استفادہ اہم ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق فوجیوں نے پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مسلح افواج کے ساتھ تعاون کے عزم کا اعادہ، قومی اتحاد، امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہنے کا عہد کیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے 2 انتخابی حلقوں کے 23 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ایل اے 16 شرقی باغ سے مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر 20,796 ووٹ لے کر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے قمر زمان دوسرے نمبر پر رہے۔ ایل اے 15 وسطی باغ سے پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء القمر 17,118 ووٹ لے کر کامیاب۔
नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज दूसरे नंबर पर रहे। बाग के इन पोलिंग स्टेशन पर 10 अगस्त को पोलिंग नहीं हो सकी थी। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान का इजाफा। इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी और डीएसपी हनीफ शामिल। कमेटी अरकान की तादाद 9 हो गई। गुलाम नबी आफरीदी मुतादिद ब्लाइंड मर्डर हल कर चुके हैं। गुलाम नबी आफरीदी को कमेटी ने खुद, जबकि डीएसपी हनीफ को फैमिली की रजामंदी से शामिल किया गया। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी। तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर में रहने की हिदायत। अदालत ने कहा, अहमद आप जमानत पर हों या ना हो, तफ्तीश ज्वाइन करने के पाबंद हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए मकतूल की सिन की जरूरत है। मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पूरा शहर सवाल कर रहा है, कातिल को क्यों बचाया जा रहा है। वकील जिब्रान नासिर का कहना है, मीर रजा किस किस से मिला, पुलिस को मालूमात दे चुके, किसी की गिरफ्तारी या आदम गिरफ्तारी का नहीं कह रहे। मुतालबा है केस की शफाफ तहकीकात की जाए। मीर रजा कातिल केस में तहकीकाती कमेटी ने मोबाइल और स्मार्ट वॉच वापस मंगवा ली। तहकीकाती जराये का कहना है, मोबाइल और स्मार्ट वॉच पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। मीर रजा के अहले खाना ने NCCI पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की बरियत का मामला। प्रोसिक्यूशन ने अदालती फैसले की तस्दीक शुदा नकूल के लिए दरख्वास्त दी। प्रोसिक्यूशन जराये का कहना है, अनमोल और पिंकी की बरियत समझ से बालातर है। मुलजिमा पर न फर्द जुर्म आयद हुई, न किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। अदालती नकूल मिलने के बाद बरियत के फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुलजिमा को बरी कर दिया था। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात और गैर कानूनी असलहे केसेस का चालान अदालत में जमा करा दिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। मुलजिम की जानिब से केस सेशन कोर्ट मुंतकिल करने की मुलजिम की दरखास्त मुस्तरद। मुलजिमान पर मुश्तरका फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिम शिराज की दरखास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। ट्रंप का मुस्तकबिल में आबनाए हर्मुज अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। कहा, ईरान की हार के बाद आबनाए हर्मुज अमरीकी इलाका करार दूंगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी सख्त नाकाबिल अबूर है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का रद्द अमल। कहा, आबनाए हर्मुज ईरानी थी, है और रहेगी। तैयारा बरदार बहरी जहाजों या सदारती अहकामात से आबनाए हर्मुज पर कब्जा नहीं किया जा सकता। हर्मुज सिर्फ ईरान के हुक्म पर बंद होगी या खुलेगी। अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची कहते हैं, कतर और पाकिस्तान के साथ मुसलसल राबते में हैं। पैगामात का तबादला जारी है। राबतों को मुज़ाकरात करार नहीं दिया जा सकता। माजी में कायम किए गए सिफारती राबते अब मौसर नहीं रहे। मक्का मुआहिदे ने दुनिया को अहम पैगाम दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दुवान ने अल जजीरा को इंटरव्यू में बताया, मुआहिदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर बैरूनी जाहरियत की सूरत में तीनों ममालिक मुत्तहद होकर कार्रवाई करेंगे। मक्का मुआहिदा मुस्तकबिल में दीगर ममालिक की शमूलियत की भी इजाजत देता है। तैयब उर्दुवान ने शाम के दौरे का इंदिया भी दिया। बार बार कह चुका हूं, कभी भी रहबरे आला के खिलाफ खड़ा नहीं हूंगा। सुप्रीम लीडर की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का कहना है, मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम है। ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। दुश्मन का बुनियादी मंसूबा ईरान को अंदर से तबाह करना है। सुप्रीम लीडर की सेहत ठीक है, उनसे तवील मुलाकात कर चुका। धोंस और जाहरियत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। महंगाई बढ़ी, हमारी आमदनी भी कम हुई। पहले तेल फरोख्त करते थे, अब नहीं कर सकते। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को तबाह कर दिया। मईशत को चलते रहना जरूरी है। होशियार खबरदार, निगाह रूबरू, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। ऐलान बादशाहों के जमाने का। मंजर जश्न आजादी की तकरीब में चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद शाही बग्गी में आए।
सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजिमों की शाही तशरीफ आवरी पर तनकीद। कहा जा रहा है 2 सरकारी मुलाजिम किस तरह ऐसे शाहाना अंदाज में आवाम के सामने आ सकते हैं जैसे वो सिविल सर्वेंट नहीं बल्कि शाही हुकाम है। शाही बग्गी जश्न आजादी की तकरीब के मेहमान खुसूसी के लिए थी, बदकिस्मती से चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद ने इस्तेमाल की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजाहती बयान। एक्स पैगाम में कहा, वो जानते हैं जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं। शाही बग्गी में सवारी करने वाले आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर का कोई कसूर नहीं। कहा, तकरीब में उनकी और मेहमान खुसूसी की शिरकत में ताखीर हुई तो अफसरों को तकरीब शुरू करने की हिदायत की गई। खुजदार के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर कार्रवाई की। दहशतगर्द 3 छोटी पार्टीज की सूरत में इलाके में मौजूद थे। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की फोर्सेस को शाबाश। कल वजीर आला हाउस पंजाब की जानिब मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का दूसरा मरहला। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कल शाम 4 बजे वजीर आला हाउस पंजाब पर धरना शुरू होगा। कराची, कोयटा और पिशावर के गवर्नर हाउस पर भी धरने दिए जाएंगे। हाफिज नईम ने कहा, धरने शुरू होने का वक्त दे रहे हैं, खात्मे का वक्त मालूम नहीं। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल का 8वां रोज। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स मुज़ाकरात करें, मजीद ताखीर मईशत के लिए तबाहकुन होगी। इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने तकरीब में गाड़ियों की चाबियां पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा, नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तसव्वुर नामुमकिन है। नई गाड़ियों की फराहमी से इस्लामाबाद पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस के पास गुज़श्ता 14 साल से पुरानी गाड़ियां थीं। इस्लामाबाद पुलिस को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाएंगे। नादरा ने QR कोड पर मबनी नया कौमी शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करा दिया। नए कार्ड में दरामदी माइक्रोचिप की जगह महफूज QR कोड शामिल किया गया। QR कोड के जरिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक स्मार्टफोन से भी मुमकिन होगी। पाक ID मोबाइल ऐप से नए शनाख्ती कार्ड का QR कोड पढ़कर तस्दीक की जा सकेगी। नए शनाख्ती कार्ड के QR कोड में कार्ड होल्डर की मुतालिका शनाख्ती मालूमात और तस्वीर मौजूद होगी। गजा अमन मंसूबे पर इख्तलाफात दूर करने के लिए सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर और निकोलाई मालिदिनोफ आइंदा हफ्ते इसराइल जाएंगे। जैरेड कुशनर और गजा अमन काउंसिल के सरबराह मिस्र का भी दौरा करेंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है उम्मीद है दौरे के दौरान अच्छी बातचीत होगी। इंडोनेशिया के फ्लोरिस रीजन में 7.7 शिद्दत का जलजला। इमारतें गिरने से 38 अफराद हलाक। मामेरे में इमारत का एक हिस्सा मुनहदम। सुनामी वार्निंग 3 घंटे बाद वापस ले ली गई। शहरियों को साहिल से दूर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक आफ्टर शॉक्स के पेश नजर शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। और कवाली के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। आवाज का जादू आज भी जिंदा। उनके गाने और कवालियां सुनने वालों के दिलों में बसते हैं। इस अजीम गायक की कवालियों के 25 एल्बम रिलीज हुए, जिनकी शोहरत ने उन्हें गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। नुसरत फतेह अली ने कवाली को मशरिक और मगरिब का हसीन इम्तिजाज अता किया। उनकी फनी खिदमात के सिले में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यूनेस्को म्यूजिक अवार्ड समेत कई बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया।